So it's my privilege to welcome you all to today's seminar hosted by विधि एकता संघ. मैं थोड़ा सा विधि एकता संघ के बारे में कुछ बताना चाहूंगी. विधि एकता संघ is not only legal association but also emotions of millions of law students, law representatives and individuals as well. विधि एकता संघ established हुई थी May 1, 2022 में, जिसका मोटिव था holding integrity which aims to restore the value of law that exists 50-60 years ago. विधेयकता संघ के साथ 55 प्लस कॉलेजेस के एम्बेसडर्स जुड़ चुके हैं जो प्रमोट करते हैं healthy communication among them and legal unity. Through VES today, we have appointed ambassadors from various courts present in India that help to raise the legal awareness, from providing legal notes to compiling college notes, organizing seminars, facilitating interaction sessions among students, providing internships, hosting moot courts and debate competitions. VES offers comprehensive range of activities to enrich legal education. VES extends scholarship opportunities to students as well. Not only VES work on legal field, but also it works for the general public, providing legal awareness, filing RTI, behalf of people, PIL, and many more initiative is being taken to make our India a better way of India. Within a span of just 14 months, VS has gained the support of over 2 lakh students and legal professions. Good evening, ladies and gentlemen. I extend a warm welcome to each one of you to this thought provoking seminar on the topic Should Lawyers Be Involved in Politics? Today, we have the distinct honor of delving into a topic that lies at the crossroad of law, governance, and social impact. Before we embark on our exploration, allow me to introduce our distinguished guest, Mr. Pradeep Rai, sir. He is luminary in the legal profession, holding the esteemed position of senior advocate at the Supreme Court of India. With over 25 years of experience, he has not only known for his profound legal expertise but has also demonstrated an unwavering commitment to justice and public service, currently serving as the chairman of the India Legal Research Foundation and India Legal Aid Center. Mr. Pradeep Rai sir has been instrumental in advancing legal scholarship and promoting access to justice initiative. His career includes notable leaderships role within the legal fraternity, including 2 terms as Vice President of Supreme Court Bar Association. Beyond his legal prowess, Sir, dedicated to social causes, is ideal. He has been actively involved in numerous humanitarian initiatives, including prison reforms and cultural competitions aimed at empowering the families of legal professions. As we have gathered here tonight, we delve into the merits and complexities of lawyers involved in politics. Throughout history, we have seen lawyers have been instrumental in advocating for social justice, upholding the rule of law, and championing the rights of marginalized. But does their entry into politics strengthen democratic institutions or does it risk compromising the independence of the legal profession? Over the next few hours, we'll hear from our team, sir. Sir, could we continue? Yes, Nancy, thank you. Thank you so much. So, Thank you so this, much for joining us today, sir, for this seminar. yes, how many persons are associated with us in this program? Sir, today in this, sir, might be over like 2000. Okay, okay. So that doesn't matter. I'm just simply your subject is such that you are your lawyer. You did not tell about yourself. I am also in this profession, like I am also a student. You are a student. So how many students are here? Allahabad University. So mostly like sir, we have mentioned already that 55 colleges all over India. We have people all Oh, students all among them. okay, right. So our this talk has to be in Hindi or English. Sir, both the languages. Okay, right. Yes, sir. So it's really very nice to be part of this talk, and now I have come to know that students are part of it and they are organizing it. So you all are very close to my heart, as you know. Yes, sir. The freedom movement and thereafter,
when the India became independent, to pre and post independence, both are completely and full with lawyers. Yes, sir. And not only in India, in all over the world. And the reason being so that lawyers, knowing the law, they knew that how to start something and reach up to the extent where you do not violate the law of the land. At the same time, you are able to communicate the message. Yes. So when we see about the Indian movement, you forget about the earlier history. But even those days, if you start from Sikandar's invasion, which was around 323 BC, and from there after, if you start from there to come to 1947, you will find that the persons who were very active and close to the king's kingdom, who were actually advising them that what is dharma, law and dharma is not different. Yes, Those sir. days, dharma means that if you are doing something good for the society, there is a code. And if you are Yes. violating the code, like in many Muslim countries, you will find that they are being governed by hadith. So Yes, sir. similarly, in our country, it was dharma, which was because of dharma only we have to do. And Dharmraj Yudhishthir was the chief justice. It was not Dharmraj means that he was person who was only telling the truth and he was really someone. So Dharmraj means that he was the chief judge and his justice skill of doing justice was perfect. So that was the way. And that's how you used to get name, because if you are good in law, if you are good in interpretation, if you are good in understanding the society, that point of time you will become a perfect man who can govern the society. Yes, So sir. that's how these things started. Yes, sir. I India has seen lot of invasions. Most of our old universities like Nalanda and Takshila no more in existence. Yes, Books sir. are not there, but teachers and others, they kept the culture and history and sociology and political science alive. If you see, we all see that Pluto is the father of political science. Yes. But Pluto, Aristotle, and Socrates, they were not. And what was the difference between these three? You see, they all are disciples of Socrates only, Socrates. Yes, sir. But Socrates was a philosopher. And Yes. he was such a philosopher that if you put him into 3,000 or 3 lakhs or whatever gathering, where he has to speak something, if the person is educated man in front of him, he will be impressed by his talks and he will be mesmerized. Yes, sir. But when he was hanged, when he was given the poison, at that point of time, he had a jury who were not that educated. He Yes. could not come up to that level. And when he tried to convince them, they were not convinced at all. They said, "I, what is talking? We don't understand." And So, that's how he was convicted. so Yes, sorry interrupt sir. I'm getting the request कि आप थोड़ा हिंदी में ज़्यादा बोलें तो हिंदी लोगों में की बोले, अच्छा ठीक है, ठीक है। यस सर। तो जो ये सुकरात की भी जो एक तरह से सजा दी गई मौत की, तो उस मौत के अंदर सबसे बड़ी बात क्या थी कि आप अरस्तु को देखें या फिर सुकरात को देखें या फिर उनके टाइम में प्लूटो को देखें, आप राजनीति शास्त्र के उद्भव से अगर आप इसकी शुरुआत करें और तब से आप इसकी एक तरह से मूल भावना के ऊपर जाएं, तो राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति या किसी भी समाज के धर्म को बनाने के जो नियम होते हैं, उन्हीं नियमों पे समाज चलता है और नियम बनाने की जिम्मेदारी खास तौर पे ज्यादातर कानूनविदों की होती है। जी। अब जैसे आप आज देखें, जमीन के कानून चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये जमीन के कानून चलाने वाले कौन थे? टोडरमल थे, जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे हुमायूं शेर शाह सूरी के। यस और सर। बाद में अकबर ने भी उनको नवरत्न बनाया अपना। लेकिन ये कौन थे? इन्होंने क्या कोडिफाई किया? इनका जो कोड था, जो लैंड लॉ का कोड था, वो आज तक वही कोड चल रहा है। 2/3 राजा टोडरमल का लिखा हुआ जमीन संबंधी, जायदाद संबंधी कानून है जो कि आज तक चल रहे हैं। उसको हिंदू लॉ ने भी अडॉप्ट किया और मुल्लाज ने भी अडॉप्ट किया। ये आसान काम नहीं था। वो इसलिए ज्यादातर जो आप एक तरह से सामने ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े और बैंड पहनने वाले वकीलों से मत देखिए इसको। इसको आप देखिए कि कहां से शुरू हुआ और कहां तक आया। पहले हमारे यहाँ न्याय प्रक्रिया में कोई कोट बैंड पहन के तो हम जाते नहीं थे। यस सर। शास्त्रार्थ एक होता था, दूसरा होता था कि आपने अपनी अपनी बात रखी दरबार के अंदर, लोग मानते थे कि ये आदमी बहुत अच्छी बात करता है। या पंच परमेश्वर जो हमारे गांव में होते थे, तो जैसे गांव के 5 पंच बैठे और पंचों ने फैसला किया, पंचों के फैसले को आप सराखों पे रखते थे। या कई बार आप उसको खाप से कंपेयर नहीं कर सकते, ये मत बोलिए कि खाप है, उससे अगर आप उसकी तुलना करेंगे तो बात तो खराब हो जाएगी।
लेकिन जो गांव के समाज के इर्द गिर्द ताने बाने से बुने बुने हुए जो कानून थे, उन कानूनों की व्याख्या और उनको सही तरीके से रखना जनता के सामने, ये खास तौर पे उस समाज का, उस परिदृश्य का एक उदाहरण था। आप देखिए, जब अब आप मॉडर्न लॉ के ऊपर आ जाएं, जब पहली बार सर थॉमस रो जो जहांगीर के दरबार में आया था, जिसने की परमिट ली कि हमको व्यापार करना है, तो व्यापार करने का परमिट कौन देता था? कोई आज के वकील थोड़ी थे। परमिट देने के लिए कानून था और उसी कानून के आधार पर उसको फरमान मिल गया। जब उसको फरमान मिल गया जहांगीर से, तो उसने व्यापार शुरू किया। लेकिन क्या आप सोच सकते थे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक फरमान लेकर के व्यापार करने आई है, धीरे धीरे अपनी फौज रखते हुए, किले बनाते हुए एक समय देश का राज करेगी और मुगल मुगल उसके नीचे काम करेंगे और बाद में मुगलों को गद्दी से हटा देगी? तो आज का जो सिस्टम आप देखते हैं, वो 1858 में, जब 57 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद 1858 में विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया, क्वीन विक्टोरिया का, हम लोग बोलते हैं उसको विक्टोरिया डिक्लेरेशन। तो जब ये आ गया, उसमें विक्टोरिया ने कहा कि अब जो जनता है भारत की, या ये जो सब्जेक्ट है, ये हमारी प्रजा है। तो जब आपने उसको अपनी प्रजा माना और वहां से सिस्टम की शुरुआत की, और फिर धीरे धीरे हाईकोर्ट बने। आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट भी बना, आपका बाकी, पहले इलाहाबाद आगरा से गवर्न होता था, लेकिन धीरे धीरे जितने भी, और दिल्ली तो हमारे जहां हम बैठे हुए, जहां सुप्रीम कोर्ट है और सब कुछ है, ये लाहौर हाईकोर्ट के नीचे आता था, और लाहौर हाईकोर्ट के नीचे इसकी भावना चलती थी। अब आप वहां से उठा के देखना शुरू करें, तो आखिर वकीलों को इतनी प्रोमिनेंस क्यों मिली और उन्होंने ऐसा क्यों लिया? वकील बनने के लिए आपकी एक कानून की पढ़ाई जरूरी थी। वकील ही ऐसी एक कम्युनिटी है जहां आपको समाज के हर हिस्से को, हर तबके को समझना और उसके लेवल पे आके बात करना, ये आप सीख जाते हो। मान लो अगर आपसे मैं बात कर रहा हूं और अगर मैं स्टूडेंट की तरह आपसे बात नहीं करूं, यूथ की तरह बात नहीं करूं, तो आपके शायद समझने में कई बार दिक्कत होगी। आप बोलेंगे कि ये सर जो बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, जी क्योंकि सर। मुझे उसी तरह से बात करनी है और आपको ही मेरे से वैसे ही बात करनी है। आपको नहीं सीखना है कि आप किस तरह से बात करोगी। आपको तो यंग हो तो आप बोल सकती हो जैसे आप बात करती हो, लेकिन मुझे कम से कम आपके स्तर पे आना पड़ेगा। आप जब भी फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे और लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना जब हुई, तो कुछ विदेशी और कुछ अंग्रेज, जो विदेशी थे वो अंग्रेज नहीं थे, गोरे थे, जैसे एनी बेसेंट या फिर आपका एओ ह्यूम, ये कोई ब्रिटिश सिटीजन नहीं थे। आयरिश थे, कोई कहीं का, कोई कहीं का, इस तरह से थे। लेकिन आपने उनको जब सबको जोड़ा और जोड़ने के बाद पार्टी बनाई, तो पहले हमने भी ऐसे ही शुरू किया था। उन्होंने फरमान लेकर के व्यापार शुरू किया था, और हमने एक उनकी उनको साथ में लेकर के हम अपनी बात कहने के लिए, उनको मदद करने के लिए एक संस्था बन गई। हम लोग इतिहास में पढ़ते थे कि सेफ्टी वॉल्व, ये कांग्रेस पार्टी जो थी वो सेफ्टी वॉल्व थी। कई बार जब झगड़ा होता था, कोई जनता के अंदर विरोध होता था, तो ये जो गैस थी उसकी वो निकल जाती थी, एक धुएं की तरह उसको बाहर निकालते थे, एक आराम से निकल जाती थी, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं थी इससे। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी धीरे 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 जब आप मांगना शुरू करते हैं, तो फिर आप मांगते रहते हैं, और फिर आपके नजर में आता है कि किस तरह से ये मूवमेंट शुरू हुआ। तो आप, एशियाटिक सोसाइटी बनी, या फिर उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी एनी बेसेंट की, फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे किस तरह से ये कानून के आगे बढ़ने के साथ साथ, रिफॉर्म के साथ साथ, आज का जो कानून है कैसे आया। अब 1909 के कानून से आप शुरुआत करें। 1909 में आप जब कार्रवाई कर रहे थे, उस समय आपके पास मार्ले मिंटो का रिफॉर्म आया, जिसमें आपको थोड़े बहुत अधिकार मिल गए। उस जमाने में आप ये सोच नहीं सकते थे कि कोई आदमी कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोल सकता है। जब गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, आज के हम आपको बोले कि आप जिले में, आप किसी जिले में जाइए धरने पे, और जनता ने आपको, सरकार ने इजाजत नहीं दी आपको, तो आप बॉर्डर पे वहां बैठ गए। अगर आप बॉर्डर पे बैठ गए और ब्रिटिश सरकार के की मर्जी नहीं है कि आप ये आंदोलन करें, तो इतनी बड़ी बात होती थी, कोई सोच ही नहीं सकता था उस समय तक। तो गांधी जी का चंपारण के सीमा पर बैठ जाना, डीएम के आदेश को माने बिना, इसको लोग कहते हैं कि दैट वाज द ग्रेटेस्ट विजडम ऑफ ए लॉयर। और वो इतनी बड़ी उसकी बुद्धिमता थी कि उन्होंने उसके बॉर्डर पे बैठ के, और उस पूरे आंदोलन में जितने लोग आते गए वो बैठते गए वहां पे। तो पुराने जो अगल बगल के जिले, उनको तो दिक्कत थी नहीं, चंपारण के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिक्कत थी। और चंपारण के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कह रखा था हमारे जिले में आप नहीं घुसेंगे, वो नहीं घुसे जिले के अंदर, बॉर्डर पे ही बैठ गए। सारी चंपारण उधर आ गई। फिर बाद में परमिशन दिया उनको। वहां से उनके समझ में आया कि किस तरह से आंदोलन को चलाना है, और कानून को तोड़े बिना
जैसे दांडी मार्च ही है, नमक कानून पहली बार किसी ने तोड़ा था, R29 का जो सिविल डिसोबीडियंस है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको बोलते हैं, तो वो भी एक अपने आप में एक बात थी। लेकिन आप देखें असहयोग आंदोलन, असहयोग कोई हमको कोई सरकार मजबूर कर सकती है सहयोग करें मेरे साथ? क्योंकि कानून टूटता नहीं है इससे। अगर आप किसी के साथ असहयोग कर रहे हैं, आपने कहा कि भाई साहब हम यहाँ से हमें रास्ता बताइए, आपने कहा मुझे नहीं मालूम या मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कानून नहीं तोड़ रहा है व्यक्ति। लेकिन अगर आपको गलत बता दे तो आप ये कह सकते हैं कि ही मिसलेड यू, फिर तो आपको उसने गलत तरीके से आपको गलत रास्ता बताया और जिससे आपको नुकसान हुआ, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मगर हम ये बोले कि हम आपसे सहयोग नहीं करते, हमें आपके साथ कोई आपके साथ मिल के काम नहीं करना है, और या विदेशी कपड़े हम नहीं पहनेंगे, ऐसे दुनिया भर की बातें, जिन बातों को लेके वो एक तरह का आंदोलन का एक स्वरूप मिला। लेकिन आंदोलन में साथ खड़े होने वाले लोग कौन थे? सरदार पटेल थे, ये भी कानून के विद थे, मोरारजी देसाई भी थे उस जमाने में, जितने भी नाम ले लें आप, लाल बहादुर शास्त्री ले लें, आप किसी का भी नाम ले लें जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने लोग, आप इन व्यक्तियों में जिसको भी उठा लें आप ये पाएंगे कि ज्यादातर व्यक्ति वही थे जो कानून के लोग थे, क्योंकि अंग्रेजों के राज में तो हिंदुस्तानियों को पद मिलता नहीं था। सबसे बड़ा जो पद मिलता था किसी को हिंदुस्तानी को, वो आपको मुंसिफ मजिस्ट्रेट का पद मिलता था। सर सैयद अहमद खान जो है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थे बनारस जिले में, जो इलाहाबाद में उनके नीचे आता था। और वहां पर उनके जो बेटे थे, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई थी सर सैयद अहमद खान ने, उनके बेटे का नाम था महमूद। ये वह जज, जस्टिस महमूद बोलते थे, जिनको कि हम लोग डिसेंटिंग जज के नाम पर जानते हैं। उनके फैसले बहुत अच्छे हुआ करते थे। लोग कहते थे कि बरेली में जब एक बार गवर्नर जनरल को रिपोर्ट गई कि कोई हिंदुस्तानी जज है, ये बड़े अच्छे फैसले लिखता है, और वो पूरी बात लिख देता है उस 2 पन्ने के अंदर जो उस केस के 2000 पन्नों में होता है। तो जब ये पता किया गया कि कौन है, बताया कि साहब कोई हिंदुस्तानी लड़का है, इसके फादर जो है, पिता जो है, वो सर सैयद अहमद खान का बेटा है ये। तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी और 28 साल की एज में हाईकोर्ट जज बनाया, जो कि आज का इलाहाबाद है, वहां पर भी वो बैठे और आगरा में भी बैठे। तो उनके फैसले बड़े खास माने जाते थे उस जमाने के अंदर। और 28 साल की एज में जज बनने के बाद अंग्रेजों के साथ बैठ के अंग्रेजों के खिलाफ फैसला देने की जो हिम्मत थी, वो उन्होंने कई बार दिखाई, जिसको कि बड़ा उसमें बहुत अप्रिशिएट किया गया, बहुत बड़ी बात मानी गई। आप असली चीज जो आप पूछना चाहती, आज की अधिवक्ता और आज की राजनीति, अब आप यस। देखें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी आज की राजनीति में, तो ये हो गया कि अधिवक्ता अगर आपकी पार्टी में नहीं है तो आपकी राजनीति चलेगी नहीं, आप सब जेल में रहोगे। तो अगर आपको राजनीति करनी है तो अपने अधिवक्ताओं को संभाल के रखो, उनको समेट के रखो, वरना आपको जेल में टाइम बिताना पड़ेगा। अब आप देखिए, पहले कानून का जो यूज या मिसयूज होता था, उसका उपयोग और अनुपयोग ये बड़े ही सीमित स्तर पे होता था। उपयोग तो सभी करेंगे, लेकिन अनुपयोग उसका कम होता था। पॉलिटिकल बेंडिटा जैसा शब्द नहीं था। जैसे नेहरू की जो पहली कैबिनेट बनी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें मंत्री थे, जो कि फाउंडर थे एक तरह से जनसंघ के। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो थे, वो पहले मुस्लिम लीग के साथ मंत्री थे, बंगाल की सरकार के साथ। तो वो कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात कहने को नहीं थी। समझने के लिए हम हिंदू मुस्लिम समझते थे, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम हिंदू मुस्लिम लीग में रहे हैं तो इधर नहीं आ सकते, और उधर रहे हैं तो इधर नहीं आ सकते। और दोनों देशों की आजादी के बाद जो प्रधानमंत्री बने वो कानून के लोग बने। ये झगड़ा वकीलों का झगड़ा था, सत्ता के लिए झगड़ा था, मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू। और अगर नेहरू को कुर्सी नहीं मिलती, दूसरे वकील भाई को मिलती, सरदार पटेल को मिलती। तो ये लड़ाई में कोई गैर वकील था ही नहीं। अगर कोई ये सोचे कि लड़ाई कोई सामने आएगा तो कौन आएगा, लेकिन शिक्षा का स्तर गिरा हमारे वकीलों का। बाद में हमारे यहाँ वकील का मतलब तो ये हो गया कि अगर वकालत आप कर रहे हो तो शादी के भी लाले पड़ जाते थे, क्योंकि यही बहुत था कि भाई आपने वकालत कर ली, इसका मतलब आप किसी लायक नहीं हो, ये आपका स्टेटमेंट है। क्योंकि हमारे शिक्षा का स्तर गिरा। जो आज की जनरेशन है, जो आज की पीढ़ी है, ये पढ़ाई कर रही है। इसके पढ़ाई लिखाई में, इसके अध्ययन में मैं समझता हूँ कि कोई वैसी शिकायत नहीं है। और अब कॉलेजेस भी ठीक से पढ़ा रहे हैं, और जो आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो यूथ है, ये भी चाहता है कि हम कुछ करें, हम कुछ नाम करें। अब हम लोग तो पढ़ते थे मैथिली शरण जी की कविता कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये असली चीज अगर आप पूछे तो एक कानून के विद्यार्थी के अंदर ये होता है। जैसे आप मान लो कि साइंटिस्ट हो, तो आप जी। अगर साइंटिस्ट हो तो आप एक लैब के अंदर काम करते हो। अगर आप आईएएस ऑफिसर हो तो डिस्ट्रिक्ट में आप प्रशासन का काम देखते हो। आप कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर हो तो आप प्लेन बनाते हो, आप पायलट हो तो जहाज उड़ाते हो।
लेकिन अगर आप वकील हो तो आपको ये सारे गुण थोड़े थोड़े पता होने चाहिए। आप ये नहीं कर सकते डॉक्टर का केस नहीं करेंगे, मेडिकल नेग्लिजेंस का केस भी आपको ही करना है। आपको कोई प्लेन क्रैश हो गया तो वो केस भी आपको करना है। साथ साथ आपको ऐसे और भी कई मामले देखने को मिल जाएंगे जिन मामलों में वकील के होने का कोई मतलब नहीं है, आपको समझ नहीं होगी उसकी, मगर वो व्यक्ति भी आपसे ही करा रहा होगा। इसलिए आपको समाज में आप जितने भी आप काम कर रही हो, अभी जैसे हमारी आपकी बात ही हो रही है, यस या हम आप लोगों से परिचर्चा ही कर रहे हैं, इस परिचर्चा के साथ भी आप जो भी बातें कर रहे हो, इससे आप कुछ ना कुछ जो भी अडॉप्ट करते हो वो माना जाएगा कि एक कानून का विद्यार्थी ये काम सारे कर सकता है। जैसे हम लोग कहीं फील्ड में घूमते हैं या फिल्म देखने जाते हैं, किसी से बात करते हैं, हर एक मामला कानून से जुड़ा हुआ है। अगर यस आप फिल्म देखने जा रहे हो, टिकट खरीदा आपने, इंटरटेनमेंट टैक्स आ गया, आपका जीएसटी आ गई। इसके बाद आप हॉल के अंदर गए, अगर उसने आपकी सीट सही जगह नहीं दी, गलत जगह बिठा दिया, या फिर आपको थोड़ा आपने फिल्म में जो सीन देखने के आप गए थे देखने के लिए वो फिल्म में वो सीन नहीं था, तो उसके लिए भी आप केस डाल सकते हो। ऐसे ही बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, ऐसे ही डिफिशियंसी सर्विस होती है इंश्योरेंस कंपनीज की। तो आप ये हर कुछ समझना पड़ता है। इसलिए कानून के विद्यार्थियों को और कानून में के जगत में रहने वाले लोगों को समाज का अनुभव, एक सोशल डॉक्टर भी हो आप, क्योंकि आप समाज को समझते हो, समाज में कानून बनाने वालों को समझते हो, और फिर उसके जो लक्ष्य हैं उस लक्ष्य को समझते हो कि इस कानून की मंशा क्या है। कई बार एक कानून के विद्यार्थी में और एक ऐसे विद्यार्थी में जो कि सब्जेक्ट को जानता है, दोनों में बड़ा फर्क हो जाता है। कानून का विद्यार्थी लेजिस्लेटिव इंटेंट पे जाता है कि आखिर उस कानून को बनाने का लक्ष्य क्या है, पर्पज क्या है, और इससे क्या सरकार अचीव करना चाहती थी, पार्लियामेंट क्या अचीव करना चाहता था। उसके आधार पे आप फैसला बनाते हो, उसके आधार पे अपनी बात रखते हो। बाकी किताब पढ़ने की तरह हम नहीं पढ़ते। इसलिए हमारी आपकी बातचीत करना, लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ संपर्क रखना, ये सब अपने आप में एक बड़ी अच्छी सी चीज होती है, जिनसे कि आप लोगों से मिल के बात करके समाज से सीखते हो। यस अब जब आप राजनीति के अंदर आप जब टिकट लेने के लिए जाते हो, अब संघर्ष तो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि अब वो राजनीति वैसी तो रही नहीं। पहले राजनीति में जो जाते थे ऐसा माना जाता था कि वो मिशन के तौर पे थे, कि हम जाएंगे, हम सेवा करेंगे। फिर एक राजनीति का दौर आया जब मिशन के तौर पे राजनीति आ गई, कि हम जाएंगे और हमें ये पद मिलेगा और हम ऐसे काम करेंगे। फिर वो एम्बिशन कब बढ़ते बढ़ते कमीशन पे आ गई, ये बहुत लोगों के समझ में नहीं आया। लेकिन जब राजनीति में ये मिशन एम्बिशन कमीशन के स्तर पे आया, तो वहां पर हर बड़ा बड़ा नेता वकीलों के आगे पीछे चक्कर लगाने लगा। और इसीलिए आप हर पार्टी में देखेंगे कि इनके पार्टी का वकील नहीं छोड़ता है पार्टी जल्दी, बहुत रेयरस केसेज छोड़ता है, बाकी छोड़ जाते हैं। वकील को तो अपनी पार्टी मिल गई, उसके केसेज मिल गए, वो कर रहा है उनके केसेस, और उनके साथ वो मिल काम कर रहा है। आप वकीलों के विजन को, वकीलों के प्रोस्पेक्ट्स को और उनके जो समझदारी को आमतौर पे चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप लगभग सब कुछ देखते हो। मेरा ये मानना है, जैसे आप चाहे राम मंदिर का ही मुद्दा ले लो, यस बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या है, बीजेपी ने मंदिर बना दिया? मंदिर तो कोर्ट ने बनाया, कोर्ट का आदेश नहीं होता तो नहीं बनता। हमें आदेश मिलने के बाद हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, किस तरीके से करें कि भव्यता मिल जाए उस आदेश को, ये हमारा काम है। कई बार सरकार आदेश को नहीं मानती है। जैसे आप सिया सुन्नी विवाद है, वो भी कोर्ट के अंदर है। आप कब्रिस्तान का विवाद भी कोर्ट के अंदर है। नदी का बंधा